Good morning, students. So today we will start our next topic, which is to find the relation between electric field and electric potential. As we already know, we can find the value of electric field at a particular point due to a source charge, as well as we can find out the value of electric potential on that point also. So what will be the relation between these two quantities, right? So first of all, we will start with the same derivation as that of electric potential due to a point charge. So suppose we are having a source charge plus Q at some point O, right? And from this point, assume some other charge, test charge we can say, at infinity, okay, or point charge. So we have to bring this point charge Q naught, suppose at point P, which is at a distance of r from the source charge, right? So it will be the same derivation of that of electric potential due to a point charge. So as we already know, if we have to bring this charge Q naught from infinity, we will have to do some work, and this charge is to be brought at point P, right? So we have to do some work, but the force which we need to apply will not be constant force, because as the charge is coming towards point P, its distance will be decreasing from the source charge, so the force which we need to apply will also be changed, and it is a case of variable force. So in case of variable force, we cannot apply the formula for work done directly, so we have to apply the formula for smaller distance first of all. So assume a point P in the path, and it is at a distance of x from the source charge, and now assume the charge moves from very small distance dx, right? And small work done, this is the same derivation as that of point charge. So small work done in moving this charge, that will be f dot dx, right? Okay, so dw is equal to minus of f dx. ये तो आपको पता ही है क्यों आया माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट थी. ओके, नाउ dw is equal to minus of f dx. Okay, now due to this source charge, there will be electric field also at point A. So due to this source charge, what will be the value of electric field at point A? Let it be capital E. So force acting on Q naught, which is here at some time, and it is to be brought at point B. So the electric field acting on point A means on point A there will be test charge Q naught. So electric field will be acting E. So force will be Q naught E. F is equal to Q naught E into dx, right? Okay. Now dw by Q naught is equal to minus E dx, right? And what will be the value of dw upon Q naught? Work done per unit charge. It is the potential. So small work done, that's why it's electric potential. Small, so dv is equal to minus E dx, or I can write it as E is equal to minus dv upon dx, right? So this is the relation between electric field and electric potential, or we can write it as electric field is negative of what it is, potential. V is potential, and what is d by dx? D by dx is called gradient, so it is potential gradient. प्लस वन में हमने क्या था, dv by dx, dt by dx. so dx के विद रिस्पेक्ट टू जो भी होता है वो उसका ग्रेडियंट होता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ potential gradient. Okay, so one more definition can be there. We can use E is equal to minus dv upon dx, as you already know. So E dx, right, from this step. Now if we have to write it in vector form, then this way we can write it as, and this is a small potential dv. For total potential, what we need to do, integrating both sides. So E dot dx is equal to V, right? So V is equal to integration of E dot dx. So as you already know,
whenever there is E dot dA or E dot ds, you call it as surface integral. But here it is dx, it means line wise on one dimensional, so that's why it is called line integral. This you have to remember. If the integration is with respect to distance, so we call it line integral. If it is with respect to area, then we will call it as surface integral. So it is line integral, right? So we can write it as one more definition for electric potential. You have to note it down. That is, electric potential is numerically equal to line integral of electric field, right? Line integral, this is a line integration, line integral of electric field at a point, right? This is another definition of electric potential. This is very important, you have to memorize it, right? Okay, now next question is there any case when where electric field is zero but electric potential is नॉन ज़ीरो? आपको अगर याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कोई पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है. तो यस, हमने किया था कि वो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं होती बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होता है. बट क्या ऐसा भी कोई पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता? ठीक है, तो वो अब पता कौन से वाला है? दैट इज़ इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, होलोस्फेयर. आपको पता है होलोस्फेयर के अंदर चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर, उसके अंदर आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है कंडक्टर के अंदर. किया था हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, बट पोटेंशियल वहाँ पे ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, ये हम नेक्स्ट आर्टिकल हम वही इसमें प्रूव भी कर देंगे, फिर हम वो वाला पॉइंट भी लिखेंगे और इससे हम न्यूमेरिकल भी वैसे प्रूव कर सकते हैं. कैसे? देखो, ये नोट में ही आपको याद रखना होगा. देखो, इनसाइड a spherical shell, E is 0 as we already know, and we are having a one formula, E is equal to minus of dV upon dx. d by dx means derivative also. So if E is 0, then minus d by dx of V. So if E is 0, then it means V will be constant there. So V is constant, it will be non-zero. V is constant inside the shell. So yes, there will be a point where electric field is 0 but electric potential is non-zero. तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो inside the shell होगा. याद रखना है ये भी आपने. inside a spherical shell electric field is 0 but जो आपका electric potential है वो non-zero होता है. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है that will be we have to find out the electric potential due to a uniformly charged spherical shell. Okay, so our next article is electric potential due to a uniformly charged spherical shell. Okay, so we are having a spherical shell whose radius is capital R suppose and which is uniformly charged. As it is a hollow, so that's why as we already know, charge cannot reside inside, so it will come on the surface and it will be distributed uniformly. Okay, so जस्ट टेल मी वन थिंग. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया था तो उसमें 3 पॉइंट निकाले थे हमने. एक पॉइंट लिया था, वन द पॉइंट इज आउटसाइड, सेकंड वाज द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड थर्ड वाज द इनसाइड ऑफ द होलो स्फीयर, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी what will be the type of electric field lines due to this shell. Obviously they are the perpendicular radially outward lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड. ऐसे यहाँ से रेडियली आउटवर्ड जा रही होती है, परपेंडिकुलर होती है और रेडियली आउटवर्ड जा रही होती है यहाँ से. ठीक है, इस तरह से. ओके, तो हमें यहाँ से देख के क्या पता लग रहा है कि जो रेडियली आउटवर्ड लाइंस जा रही हैं जो हमने ऐसे बनाई हैं, ये क्या हमें शो कर रही हैं? द होल चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. तो हम क्या मान सकते हैं कि सारा का सारा, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन भी की थी तो इसका आंसर k3/r² आया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो डिस्टेंस कहाँ से लिया था हमने? फ्रॉम द सेंटर. इट मीन्स द होल चार्ज कैन बी सपोज, वी कैन सपोज इट टू बी कंसंट्रेटेड एट द center of the shell. Okay, so if we have to find out the electric potential at point P here outside the shell which is at a distance of small r from the center of the shell,
देन हम लिख देंगे कि यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं दैट आप लाइन लिखोगे कि द चार्ज इज सपोज टू बी कंसिडर्ड एट द सेंटर एज वी कैन सी फ्रॉम द शेप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दे आर सपोज टू बी, और वो ऐसे अपीयर हो रही है दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर, सो दैट्स वाई। तो हम बोल सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है, तो एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट पी पे अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सिंपल, ठीक है, ओके। अब जो केस 2 हम करेंगे ना, ये तो हमने क्या कौन सा लिया, ये दिस इज केस 1, केस 1 हमने लिया है एट पॉइंट एट आउटसाइड, है ना, एट आउटर पॉइंट, दिस इज द आउटर पॉइंट, ओके। तो नाउ केस 2 is at point on the surface, राइट। पहले हमने पॉइंट लिया था कहाँ पे, आउटर पॉइंट पे, अब हमने पॉइंट कहाँ पे लेना है, सरफेस पे लेना है, राइट, ओके। जब हम सरफेस पे पॉइंट लेंगे, अब ये देखो, जब सरफेस पे लेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर सरफेस पे सेंटर पे चार्ज है, सरफेस तक का उसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो सरफेस पे बस फर्क यही आएगा कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगा। वो यहीं पे ही है आपका जो पॉइंट है, इस जगह पे ही है पॉइंट पी और कैपिटल आर है, तो फिर उसका क्या आंसर आएगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, राइट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, राइट। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन थर्ड, एट ए पॉइंट इनसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, शेल के अंदर हमने पॉइंट लेना है, राइट। अब देखो ये शेल हमने बनाया, इसके पॉइंट लिया हमने यहाँ पे इनसाइड, ये तो है रेडियस बट पॉइंट हमने लिया यहाँ पे, ओके। अब आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, राइट, ये इसका सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर होती नहीं है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो हम लिख सकते हैं प्रीवियसली जो हमने प्रूव किया था, एज E इज़ 0 सो V इज़ कॉन्स्टेंट, प्रूव कर सकते हो आप कि अंदर पूरा कॉन्स्टेंट रहता है। अब सरफेस पे बताओ कितना है, इस पॉइंट पे, सरफेस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर है। सरफेस के जस्ट अंदर, बिल्कुल जस्ट अंदर वाला पॉइंट पे कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर सरफेस पे है, तो सरफेस से जस्ट अंदर करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम होगी जितनी सरफेस पे है। अगर सरफेस पे इतनी है तो अंदर बिल्कुल थोड़ा सा जस्ट अंदर ले आओ तो उस पर कितनी होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो एट अ पॉइंट जस्ट इनसाइड द सरफेस will be V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, वो भी उतनी हो जाएगी जितनी सरफेस पे, बिल्कुल साथ ही तो पॉइंट है, तो उससे थोड़ा पीछे आ जाएंगे तब भी उतनी रहेगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है पूरे अंदर ही क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो आप लिखोगे एज V इज कांस्टेंट इनसाइड, सो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर एट every point inside the shell, शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे वो कितनी रहेगी, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही होएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अंदर उतनी ही रहेगी, ठीक है। और सेंटर पे, सेंटर भी तो अंदर ही पॉइंट आता है, सेंटर कोई अलग थोड़ी है, सेंटर भी तो उसके अंदर है, सेंटर पे ऑल्सो के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अंदर पूरे के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, सिर्फ बाहर जाके जो है वो डिक्रीज होगी डिस्टेंस के, अंदर पूरे कांस्टेंट ही है। तो अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ V और ये डिस्टेंस के साथ, ओके, कैसा बनेगा ग्राफ, यहाँ पे आपको पता है सरफेस ये सेंटर है, सेंटर पे, तो सेंटर से लेके सरफेस तक आप आ जाओ कैपिटल आर तक, वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है, उतना ही है, अंदर कांस्टेंट है पूरा। उसके बाद जब अंदर के बाद जब हम बात करेंगे फिर उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे वो कांस्टेंट है, V इज़ कांस्टेंट इनसाइड, और उसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे वैल्यू पता है कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है जी।